बेंगलुरु में मौत की परेड। दरअसल ये एक सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो फिर तैयारी कितनी होती है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है और इससे आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए भी सीख मिलती है। आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले अचानक से भगदड़ हो गई। ये भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई। दरअसल हादसे में 11 लोगों की इस दौरान जान गई, कई लोग घायल हुए। हादसे में 33 लोग के घायल होने की खबर सामने आई है। आरसीबी समर्थक की भारी भीड़ यहां उमड़ी हुई थी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऐतिहासिक जीत पर बेंगलुरु शहर जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर का जश्न अचानक से मातम में तब्दील हो गया। हजारों की संख्या में उमड़े फैंस की भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। अब इस भगदड़ के पीछे की असल वजह सामने आई है। सूत्रों के अनुसार चिन्नास्वामी स्टेडियम परिसर के पास एक नाले को ढकने के लिए रखा गया अस्थायी स्लैब भीड़ के वजन से टूट गया। कई लोग इस स्लैब पर खड़े होकर के टीम को देखने की कोशिश कर रहे थे। जब स्लैब अचानक टूटकर गिर गया तो वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि विजय समारोह के दौरान एक बड़ी त्रासदी हुई। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। सरकार घायलों को मुफ्त इलाज भी मुहैया कराएगी। वहीं इस हादसे पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि भीड़ ने गेट तोड़ दिए और चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, जहां बड़ी संख्या में लोग आरसीबी की जीत के जश्न में भाग लेने के लिए उमड़े हुए थे। State government has to take complete responsibility on this tragedy. When entire nation was celebrating and entire Karnataka was celebrating RCB's victory, without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. And state government never bothered about preparedness. Publicity was a major. State government was more interested in publicity rather than the social. So this has resulted in the death of more than 11 people. And some more youths, they are still serious. They are inside ICU also. I just spoke to one of the victims. No police was there inside. Ambulance facility was not there. And they themselves were rushed to the hospital, to the Boring Hospital now. So I demand Chief Minister to take up the responsibility and he should refer the matter for the judicial inquiry and let Chief Minister decide who has to take up the responsibility. Let Chief Minister decide. But he has to refer the matter to the judicial inquiry. We never expected such an incident would have happened. Of course, no one no political party or no officials doesn't want. They have done their best in their, but it was uncontrollable crowd. We never expected such a big following. After 18 years, they have been looking at something great, something great. I am telling you, God willingly, I am telling you, this is unexpected crowd and the vibrant crowd. It is not a crowd like an ordinary crowd. You have seen, your cameras have seen, your eyes have seen, your ears have seen. What more you want? I feel sorry. I apologize for the great incident. Thank you. There are small gates. The people entered through the gates. You have broken the gates. They have broken the gates also. So stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there.
but 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. So that is why, see, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ ಪೇಶಿ, it looks like that. It doesn't mean that ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. That is why I ordered magisterial inquiry. तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न में भाग लेने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के जुटने से भगदड़ मच गई, लेकिन इस हादसे में 11 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि ये जानकारी आपको दे दें कि कई लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दुख तो व्यक्त किया, लेकिन एक बार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो स्टेडियम के बाहर से आई हैं। ये स्टेडियम के गेट नंबर 7 के बाहर की तस्वीरें बताई जा रही है, जहां पर आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों के जूते चप्पल बिखरे हुए दिखाई देंगे। और इन बिखरे हुए चप्पल और जूतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न जाने यहां कितनी लोगों की भीड़ उमड़ी होगी और किस तरीके से लोग एक दूसरे पर चढ़ना शुरू हो गए होंगे कि जिस वजह से एक दूसरे के जूते खुल गए, वहीं चप्पलें छूट गई, क्योंकि लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए आमादा हो गए। कैसे उस भीड़ से बाहर निकला जा सके उसके लिए राह ढूंढने लगे, और उस चक्कर में आप खुद इस वक्त इन बिखरे हुई चप्पल और जूतों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त न जाने उन लोगों पर क्या बीत रही होगी, कैसे वो अपनी टूटती हुई सांसों को जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, कैसे उन सांसों को दोबारा से एक लय में लाने की कोशिश कर रहे होंगे जो थम रही होंगी। क्योंकि इस दौरान ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि इसमें कुछ मासूम बच्चे भी थे जिनकी जान पर बनाई है, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है तो कुछ मौत के शिकार हो चुके हैं। यानी आप ये समझिए कि कैसे पूरा कार्यक्रम अचानक से मातम में तब्दील हो गया। स्टेडियम के पास लोगों की भीड़ के कारण भगदड़ तो हुई जिस वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के बेंगलुरु हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, ये पीएम की ओर से अपने पोस्ट में कहा गया है।